There is only one desire that your heavenly Father has for you, and that is victory, victory, victory in the name of Jesus. The message of the kingdom is righteousness, राज्य का संदेश धार्मिकता है, peace, शांति है and joy और in आनंद the है। Holy Ghost. Jesus then said, the flesh gives birth to flesh, the spirit gives birth to spirit. और यीशु यहाँ कहते हैं शरीर शरीर को जन्म देता है, लेकिन आत्मा आत्मा को जन्म देता है। Amen. आमीन। धन्य है हमारी आंखें जो परमेश्वर के कामों को देखती हैं, Our eyes are blessed that we see the works of God, और धन्य है हमारे कान जो उसके वचन को सुनते हैं। and blessed are our ears that hear His word. Amen. You are blessed people. आप धन्य लोग हो, आशीषित लोग हो। Come on, say it. I am blessed. कहो मैं आशीषित हूँ। Amen. आमीन। I don't know about you, but this is my day. मुझे आपका नहीं पता, पर आज मेरा दिन है। Anybody who believes this is their day, कोई है जो ये मानता है कि आज आपका दिन है? I told you every day is God's day. मैंने आपसे बताया था हर दिन परमेश्वर का दिन है। The day I believe is my day. जिस दिन मैंने मान लिया वो मेरा दिन है। Amen. There is so much more इतना कुछ है that the Lord has kept for His children. जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। The Bible says it will take us eons, that means billions of years to fathom, to experience the riches of His grace. बाइबल कहती है युग लग जाएंगे उसकी भलाई के, उसकी करुणा के धन को जानने में। जितना अच्छा आप सोचते हैं ना वो है, उससे वो करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है। What do you think how good he is? He is billions of times better than that. And this is my prayer, और ये मेरी प्रार्थना है that you will experience the goodness of God in the land of living. कि आप जीवितों की दुनिया में यहोवा की भलाई को देखेंगे। उस पार तो देखोगे ही, You will see his goodness on the other side. but I'm talking about this side. लेकिन मैं इस ओर की बात कर रहा हूँ। Amen. May this be your testimony ये आपकी गवाही हो that I saw His goodness कि मैंने उसकी भलाई को देखा all my life. अपने जीवन भर। Amen. आमेन, You can be seated. Amen. आमेन। कितने लोग वचन के लिए भूखे हैं इस जगह में? How many people are hungry for the word in this place? You know what I loved about the testimony of this family? इस परिवार की गवाही के बारे में मुझे क्या सबसे ज्यादा पसंद आया मालूम है? That a daughter caught hold of the word कि एक बेटी ने वचन को पकड़ लिया, even when the situation looked impossible. तब भी जब परिस्थिति असंभव दिखाई देती थी। That's what God wants. ये है जो परमेश्वर चाहते हैं। That's why the kingdom is for simple. The kingdom is for childlike people. इसीलिए राज्य साधारण या जो बच्चों जैसी विश्वास रखते हैं उनके लिए, जो बच्चों जैसे हैं। And not only she heard it, और उसने केवल सुना ही नहीं, she started to exercise her faith. उसने अपने विश्वास को काम में लाना शुरू कर दिया। And what was once impossible और जो एक समय असंभव दिखता था became possible. वो संभव बन गया। May it be with you and your family. आपके और आपके परिवार के साथ ऐसा ही हो। The situations that look impossible, may them become possible in Jesus' name. जो परिस्थिति आपको असंभव दिखती थी वो आपके लिए संभव हो जाए यीशु के नाम में। Amen. आमेन। So do not just be a hearer of the word, केवल वचन को सुनने वाले ना बने, but exercise. लेकिन उसको काम में लाएं। But to exercise the word, you have to become attentive listeners of the word. पर वचन को काम में लाने के लिए आपको उसको ध्यान धरकर सुनने वाला बनना पड़ेगा। Don't just come here to get healed. यहाँ पर केवल चंगाई लेने के लिए ना आए। Even though as long as I live, we will pray for the sick, we will heal the sick. हालांकि जब तक मैं जीवित रहूंगा हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। But don't just come to God's house only to get healed. Yes, come to get healed, but don't just come only to get healed. तो परमेश्वर के घर में चंगाई के लिए आए, चंगाई पाने के लिए आए, लेकिन सिर्फ चंगाई पाने के लिए ना आए। Once you get healed, एक बार आप चंगे हो जाते हैं, stay. ठहरे Stay. ठहरे। Because earlier your motivation was to get healed. क्योंकि पहले आपका प्रोत्साहन था चंगा होना, But now you are healed. लेकिन अब जब चंगे हो गए हो, Now your motivation should be, अब आपका प्रोत्साहन होना I want चाहिए, to grow in Him. मैं अब उसमें बढ़ना चाहता हूँ। I want to be a mature son and daughter. मैं एक परिपक्व बेटा बनना चाहता हूँ, बेटी बनना चाहती हूँ, So that your life will be filled with exploits. ताकि आपकी जिंदगी महान कामों से भरी हुई हो। Not just a few testimony here and there.
यहाँ वहाँ थोड़ी गवाहियाँ नहीं सिर्फ, Oh, it happened in 1970. वो 1970 में हमारे साथ No, ऐसा हुआ no. था। नहीं नहीं नहीं, Every week. हर हफ्ते, Every week. हर हफ्ते, Every month. हर महीने, Every year. हर साल, From glory to glory. महिमा से From महिमा में, victory to victory. जय से जय From में, faith to faith. विश्वास से विश्वास में। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Not a stagnant life, एक जगह रुकी हुई जिंदगी नहीं, but an ever increasing life. लेकिन निरंतर बढ़ते रहने वाली जिंदगी। Amen. आमेन। जो वचन के प्रेमी है ना, वो कभी भी तराई में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे. The lovers of the word of God will not stay in the valley for long. Okay? हो सकता है कि आप तराई में हो आज, Maybe you're in the valley today, but you'll not stay there. पर आप वहां ठहरेंगे नहीं। David doesn't say, I sit in the valley of the shadow of death. He said, even though I walk through. Let me tell you, you are walking through every valley in the name of Jesus. दाऊद ये नहीं कहता कि जब मैं मृत्यु की छांव की तराई में बैठ जाऊं, मैं, वो कहता है मैं उसमें से होकर गुजर जाऊं। मैं कह रहा हूं आप हर एक तराई में से होकर गुजर जा रहे हो। Amen. No matter what your valley is right now, you are walking through it in the name of Jesus. आपकी तराई कुछ भी क्यों ना हो, उसमें से चलकर आप बाहर आ रहे हो यीशु के नाम में। And like David, you can say, I will fear no evil. और दाऊद की तरह आप कह सकते हैं कि मैं किसी भी बुराई से नहीं डरूंगा। Amen. Come on, tell your neighbor, you are coming out of this situation victorious in Jesus' name. अपने पड़ोसी से कहें आप परिस्थिति से बाहर आ रहे हैं जय पाकर के यीशु के नाम में। There is only one desire that your heavenly Father has for you, and that is victory, victory, victory in the name of Jesus. आपके स्वर्गीय पिता की केवल एक ही चाहत है आपके लिए, और वो है जय, जय और जय यीशु के नाम में। Amen. If it does not look like victory, if it does not smell like victory, if it does not taste like victory, if you don't hear it like victory, then I want to tell you, it is not over yet. अगर आपकी परिस्थिति दिखने में जय जैसी नहीं दिखती, सुनने में जय जैसी नहीं सुनाई देती, नहीं अभी वहां पहुंची है, तो अभी बात खत्म नहीं हुई है। Amen. Say, victory is my portion. बोलो जय मेरा हिस्सा है। Not only were you born for victory, you were born in victory. आप केवल जय के लिए ही पैदा नहीं हुए, आप जय में पैदा हुए हैं। Amen. All right. So let's go to the word. तो हम You can वचन में be चलते seated. हैं, आप बैठ सकते हैं। But hear this. पर सुनिए, A sermon is for everyone. एक प्रचार सभी के लिए होता है, But in that sermon is the proceeding voice of the Lord. लेकिन उस प्रचार के बीच में, उस प्रचार में परमेश्वर की भेजी गई आवाज होती है। And if you are sensitive enough और अगर आप संवेदनशील हो to receive ग्रहण करने के लिए that Rema word that God has for you, वो रेमा वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, because He knows your situation. क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को जानता है। I love that sister said she had the lung problem, and from that sermon she heard, if God has to give me a lungs of steel, God will do that. And that was the word for her breakthrough, and she got her breakthrough. उस बहन को जिसको फेफड़ों की समस्या थी, उसने प्रचार के बीच में सुना, अगर परमेश्वर को मुझे स्टील के फेफड़े देने हैं तो वो देगा, और उसने उसको ग्रहण कर लिया, उसके लिए वो छुटकारा था। Amen. So during the word, वचन के बीच में keep your ears open, not just your physical ears, but the ears of your heart. अपने कानों को खुले रखना, सिर्फ शारीरिक नहीं पर अपने दिल के कानों को खुला रखना। Amen. आमेन। So last Sunday we learned something about righteousness. पिछले रविवार हमने धार्मिकता के बारे में कुछ सीखा था, And I believe the time has come for the body of Christ to grow to maturity. और मैं मानता हूं कि इस समय आ गया है मसीह की देह परिपक्व हो, बड़ी हो। मैं पिछले हफ्ते मैं शारजा में था, आई वाज इन शारजा और लास्ट जब वीक, वर्शिप हो रही थी तो प्रभु मुझसे बात करने लगे और प्रभु मुझे बताने लगे कि कैसे मैच्योरिटी परमेश्वर इच्छा रखता है अपना, उसकी जो देह है वो परिपक्व हो जाए। and while the worship was going on, the Lord began to speak to me how the Lord desires that his body matures. It is his will. But if you see, majority of the church is still stuck in sin and repentance, and sin and repentance, and sin and repentance. पर अगर आप देखेंगे तो अधिकतर कलीसिया आज भी इस साइकिल में फंसी हुई है, पाप और फिर पश्चाताप, पाप और पश्चाताप, पाप और पश्चाताप। Jesus, his message was repent for the kingdom is at hand. यीशु का संदेश था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक हाथ की दूरी पर है। That means Jesus was talking about a kingdom that was about
to invade here. इसका मतलब यीशु कैसे राज्य की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हावी होने, यहाँ पर प्रकट होने को तैयार है. And he said, you need to repent. You need to change the way you see if you want to be a part of this kingdom. और वो कहता है रिपेंट यानी कि मन फिराओ, अगर तुम इस राज्य का हिस्सा होना चाहते हो तो अपने नजरिए को बदलो. So hear this. सुनिए. Repentance brought me in the kingdom. मन फिराने के कारण मैं राज्य के अंदर आ गया. Are you with me? मेरे साथ हो? But now when I am in the kingdom, लेकिन अब जब मैं राज्य के अंदर हूं, what should I do? मैं क्या करूं? Are you with me? मेरे साथ है? For some believers, they have been saying, sorry Lord, sorry Lord, sorry Lord, sorry Lord for 40 years. कुछ विश्वासी 40 साल से माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो प्रभु And बोलते हैं. every time believers meet, the same message, repent, repent, repent. And when they say repent, they mean say sorry. और जब कभी विश्वासी इकट्ठा होते हैं तो एक ही संदेश प्रचार होता है, माफी मांगो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, मतलब माफी मांगो परमेश्वर. That's why the church has remained in the babyhood Christianity. इसीलिए कलीसिया एक बच्चे की स्थिति में रही है मसीहत के. They have never grown to the full stature where they can rule and reign like their Lord. वो कभी भी अपने असली डील डॉल में बढ़ नहीं सके जहां पर वो अपने प्रभु की तरह राज्य और प्रभुता कर पाए. Hear this. सुनिए. The message that I want to preach today is from repentance to righteousness. जो संदेश आज मैं प्रचार करना चाहता हूं वो है पश्चाताप से धार्मिकता तक. Repentance is very important. Do not misunderstand me. मन फिराव बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे गलत मत समझना. बिना मन फिराव के कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Without repentance, no one can enter into the kingdom of God. मगर जब एक बार आपने मन फिरा दिया और यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर दिया और उसके राज्य में प्रवेश कर, अब क्या करना है भैया? But once you have repented, once you have been born again, once you have entered the kingdom of heaven, now what to do? The message of repentance takes you in the kingdom. मन फिराव का संदेश आपको राज्य में ले आता है. But that is not the message of the kingdom. लेकिन वो राज्य का संदेश नहीं. The message of the kingdom is righteousness, राज्य का संदेश धार्मिकता है, peace, शांति है and joy और in आनंद the है Holy Ghost. पवित्र The आत्मा Bible में. says in Romans 14:17 that the kingdom of God is not eating and drinking, but it is righteousness. That's the first message of the kingdom. It is righteousness. रोमी 14:17 में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है लेकिन धार्मिकता, पहला धार्मिकता है जो संदेश है राज्य का. आज ध्यान से मेरी बात को सुनो, Today, hear क्योंकि अगर आप ये carefully. नहीं जानोगे, आप बार बार वही परमेश्वर के पास एक भिखारी की तरह जाते रहोगे. Because if you do not learn this, you will keep going to the Lord again and again like a beggar. मैंने आपको पिछले संडे भी सिखाया था. इसीलिए इस संदेश से शैतान नफरत करता है, क्योंकि जिस दिन ये संदेश एक विश्वासी की आत्मा में प्रवेश कर जाता है, फिर वो भिखारी नहीं, फिर वो उत्तराधिकारी की तरह बात करने लग जाते हैं. And I told you last Sunday, this is why the devil hates and fights this message, because the day the message of righteousness enters the spirit of a believer, he stops living like a beggar and starts living like an heir. यीशु ने हमें भिखारी नहीं, उत्तराधिकारी बनाया है. Jesus has not made us beggars, he has made us sons and daughters, heirs of God. Amen. So अगर आप मेजॉरिटी बहुत ज्यादा मसीहों से मिलोगे, उनको कोई आइडिया नहीं है राइचियसनेस क्या होती है. If you meet majority believers, they have no idea what righteousness even is. क्योंकि पश्चाताप का सुसमाचार इतना ज्यादा प्रचार हुआ और धार्मिकता का बिल्कुल भी नहीं हुआ. इसीलिए आज कितने सारे मसीह आज भी छोटे बच्चे हैं राज्य में. और मैं जब रिपेंटेंस की बात कर रहा हूं, मैं माफी मांगने की बात कर रहा हूं, जो असली में रिपेंटेंस है भी नहीं. बिकॉज थीफ ऑन द क्रॉस डिड नॉट से सॉरी वन टाइम एंड एंटर्ड हेवन. Because जो चोर उस क्रूस पर यीशु के साथ था, उसने एक बार भी सॉरी नहीं बोला और लेकिन उसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया. आपने पढ़ा बाइबल में कि वो यीशु कह रहा है, ओ प्रभु यीशु मसीह, जितने पाप मैंने जाने में अनजाने में करे, प्रभु ने क्षमा कर. कहा उसने ऐसा? Did you read in the Bible that thief saying, "Oh Lord Jesus, all the sins I committed knowingly or unknowingly, please forgive them"? No, he did not. Now, don't come to conclusions. अभी निष्कर्ष पे मत पहुंचो. If you mess up, go to God and say sorry. अगर गलती करते हो प्रभु के पास जाके माफी मांगो. I'm not preaching against it. मैं उसके खिलाफ But I'm saying if your entire relationship with God is sorry, 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 then something is wrong. पर मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर के साथ आपका सारा जो रिश्ता है वो माफी मांगने का है तो कुछ दिक्कत है. Biblical repentance is changing your mind. बाइबल में जो मन फिराव है वो अपने मन को बदलना है. चोर ने जब यीशु को देखा तो मन फिराया
उसका माइंडसेट चेंज हो गया, वो जान गया कि ये आम व्यक्ति नहीं, ये प्रभु है। और उसने कहा, प्रभु आज जब तू अपने राज्य में प्रवेश करे तो मुझे मत भूलना। यीशु ने कहा, आज की रात तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। कभी आपने सोचा है, why doesn't God get rid of all the wicked people on this earth and the remaining people can live happily ever after? Have you ever thought क्यों परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि सारे दुष्टों को पृथ्वी से मार डाले, उसके बाद जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा खुश दिए? इतनी दुष्टता है पृथ्वी पे, There is so तो much परमेश्वर wickedness. सारे दुष्टों को नाश कर दे God should end all the कि wickedness. बाकी जो बचेंगे वो अच्छे से रह सकते हैं। That पता है क्या प्रॉब्लम है इसमें? the remaining will live. क्योंकि अगर प्रभु को ऐसा करना पड़े तो सबका नाश करना पड़ेगा। The problem is, if God has to do that, He has to kill everybody on the earth. The problem is we think other people are very wicked. समस्या ये कि हम सोचते हैं कि दूसरा बहुत बुरा है, But Bible is very clear. और बाइबल स्पष्ट है For all have sinned and fallen short of the glory of God. कि जी सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से गिर गए। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप सीखोगे, You learn something very और important. केवल सीखना नहीं है, Don't just learn it, उसके बाद अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियंस को ट्रेन करना है, then train your conscience, so that you will have boldness before God. ताकि परमेश्वर के सामने आपके पास साहस हो। Okay? ग्रेजुएशन होनी है, You have to get to भिखारी graduate. से उत्तराधिकारी, You have to graduate from a beggar to an heir of God. क्योंकि धर्म हमें बनाना चाहता है भिखारी और मसीह हमें बनाना चाहता है उत्तराधिकारी। Because Amen? Hallelujah. कभी आपने सोचा है कि अगर स्वर्ग में केवल सिद्ध या परफेक्ट लोग जाएंगे जिन्होंने जो कोई गलती नहीं करते, अब have you ever thought that if only perfect people that never miss a mark can enter into heaven, then nobody is going. फिर तो कोई नहीं जा रहा है, Nobody is going. कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा फिर, Nobody is going. कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा फिर, Not one person is going. एक भी इंसान नहीं जाएगा। मैंने आपको पिछले संडे भी ये सिखाया था, जेम्स याकूब 2:10 में लिखा है, जिसने एक प्रतिज्ञा तोड़ी, वाचा का एक वचन तोड़ा, उसने सारी तोड़ दी। James 2:10 says, "He who breaks one commandment has broken the entire law." क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु, बोलो परंतु, आप सारी व्यवस्था का पालन करते हो, परंतु You fulfill the entire law, yet एक ही बात में चूक जाए, stumble in one point. कितनी बात में? In how many? एक ही बात में चूक जाए, Stumble in तो one. वह सब बातों में दोषी ठहरा। He is guilty of all. यही तो बात है। This is the thing. इसलिए स्वर्ग सिद्ध लोग नहीं जाएंगे, That's why perfect people will not go to heaven. जो कामों से परफेक्ट होना चाहते हैं, Those who want to be perfect by their own works. जो बिहेवियर से परफेक्ट होना चाहते They हैं। want to be perfect by their behavior. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? How many understand? It's not your behavior that's the problem, it's your position that's the problem. आपका स्वभाव दिक्कत नहीं है, आपका स्थान दिक्कत का है। ओके, बाइबल क्लियरली हमें दो मनुष्यों के बारे में बताती है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में सिखाया है, मगर बार बार सिखाना बहुत जरूरी है। The Bible tells us about two people. I've taught you before, I'll teach again. दो मनुष्यों के बारे में मेन बाइबल में बात है। The Bible talks mainly about two people, two कौन individuals. कौन? फर्स्ट एडम और लास्ट एडम। पहला आदम और आखिरी आदम। सो फर्स्ट एडम एंड लास्ट एडम। पहला आदम और आखिरी आदम। Let's see Romans 5:12. I'll read from Amplified Version. रोमी 5:12 में amplified क्या करूँ। सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान धरकर। Therefore, as sin came into the world through one man. इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। So पाप कैसे आया? How did sin enter? एक आदमी के द्वारा पाप आया, Through one man sin entered. आदम के द्वारा। Through Adam. आदम के द्वारा पूरी पृथ्वी पे क्या आया? पाप। Sin entered. Through Adam sin entered the entire earth. And death as the result of sin. और मृत्यु पाप के परिणाम स्वरूप प्रवेश और कर गई। पाप के थ्रू क्या आई? मृत्यु। What came through sin? Death. सो इस बात को समझो कि जो कोई पहले आदम से जन्मा, उसके ऊपर दंड की आज्ञा थी। There was a sentence of death. So anyone who was born of the first Adam, they had the sentence of death over them. इसीलिए आज भी आप चारों ओर क्या देखते हो? न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या हो रहा है? लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं वो? Even today when you read क्योंकि newspapers. वो आदम से पैदा हुए, आदम के द्वारा आए। पूरी मानव जाति आदम में थी, आदम के द्वारा पैदा हुई। The entire humanity was in Adam, came out of Adam. That's why people are dying. Okay? So everyone who was under Adam was under a death sentence. जो कोई आदम से पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, वो मृत्यु के दंड के अधीन था।
और जो कोई आदम से पैदा हुआ वो पाप का दास हो गया. Okay, what does a slave to sin means? That means no matter what you do, you cannot be free. पाप का दास होने का अर्थ है चाहे कुछ भी कर लो उससे आजाद नहीं हो सकते. Slaves of sin. पाप के दास. प्रॉब्लम क्या है यहां पे? What is the problem here? मानव जाति का बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं था. मानव जाति जिस व्यक्ति के अंदर थी वो रीजन था, वो कारण था कि सब पापी हो गए. The behavior of mankind was not the problem, but out of whom mankind came was the problem because that person brought in the death. Okay, इसको पूरा पढ़ते हैं. As sin came into the world through one man and death as a result of sin, so death spread to all men, no one being able to stop it or to escape its power because all men sinned. इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया. सो आदम से पाप नीचे आता रहा और क्योंकि पाप प्रवेश कर गया पहले आदम से, तो जितनों ने उससे जन्म लिया, all sinned. Sin descended from Adam into all that were born from Adam. So सब ने पाप किया. तो अगर कोई ऐसा मनुष्य आज जो आपको मिले और कहता है मैंने पाप नहीं किया, तो बाइबल कहती है वो क्या है? वो झूठा है. So if you meet a man today that says I have never sinned, the Bible says this person is a liar. क्योंकि जो आदम के अंदर है वो क्या है? एक वो पापी है. Because everyone who is in Adam is a sinner. ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं. जो आदम के अंदर है वो पापी है. Everyone who is in Adam is a sinner. धर्म हमें क्या सिखाता है? जो दारू सिगरेट ये पीता है, व्यभिचार करता है, वो पापी है. हम तो नहीं करते, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो हम क्या हैं? बहुत पवित्र. प्याज लहसुन नहीं खाते तब भी आदम के अंदर वो पापी हो. क्योंकि पाप का आपके खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है. किसके द्वारा आप इस दुनिया में आए उससे लेना देना है. Religion teaches us, oh, they drink, they smoke, they eat all this. We don't do that. That's why they are sinners and we are not. But it doesn't matter what you eat and drink. Sin is a matter of whom you are born of. सदूसी दारू नहीं पीते थे, गुटखा नहीं खाते थे, ये सारे काम नहीं करते थे, मगर यीशु ने जब उनको देखा तो बोला तुम तुम्हारे पिता शैतान के हो. The Sadducees did not drink or smoke or do any of that, but when Jesus saw them, he said, you are of your father the devil. क्योंकि हम सोचते हैं पाप व्यवहार से है, यही गलत हमारी मानसिकता है. पाप व्यवहार से नहीं है, पाप जन्म से है. Because we think sin is a behavioral matter. That's our mistake. Sin is not a behavioral matter. It's a birth problem. अगर व्यवहार से पाप होता तो व्यवहार बदल देते, सही हो जाता. मगर अगर जन्म से पाप है तो उससे कैसे छुटकारा पाएं? Because if sin was a behavioral matter, we could have changed our behavior and everything would have been fine. But if it's a birth matter, you cannot be free from it. If sin is a birth problem, we cannot break its power through works. अगर पाप एक पैदाइशी समस्या है तो हम कामों के द्वारा उससे आजाद नहीं हो सकते. Hear this. If sin was a birth problem, then there should be another birth that should give us redemption from this problem. लेकिन अगर पाप एक पैदाइश की कारण समस्या है तो एक और पैदा होना है जो हमें उससे आजाद कर सकता है. एक और जन्म उससे आजाद कर सकता है. ध्यान से मेरी बात को सुनो. कितने अच्छे पुण्य के काम आप कर लोगे कि वो आपको पहले आदम से हटा दे? How many good works could you do that it will take you out of the first Adam? नहीं कर सकते. You cannot. Come on. Are you getting what I'm saying? देखो मेरा जन्म एक सजवान परिवार में हुआ. I was born in मैं Sajwan कुछ भी family. कर्म कर लूं, No matter what works I मैं do, अपनी लीनिएज को नहीं बदल सकता. I cannot change my lineage. No amount of good works कितने भी भले काम कर can लूं, change our lineage from Adam. जो आदम से हमारी वंशावली चलती आई, हम कितने भी भले काम करके उसको नहीं बदल सकते. That's why when Adam sinned, इसीलिए जब आदम ने the पाप किया, first question God asked him was not Adam, Adam, what have you done? God asked Adam, Adam, where are you? Your location is changed. Your position is changed. इसीलिए जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने पहला सवाल ये नहीं किया कि हे आदम तूने ये क्या कर दिया. परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, तेरा स्थान बदल चुका है. You no longer have a standing in front of me. अब तू मेरे सामने वो स्थान नहीं रखता जहां मैंने तुझे रखा था. Are you guys with me? क्या सीख रहे हैं हम कुछ? क्योंकि जब तक आप पाप को व्यवहार समझोगे तब तक आप अपने को धर्मी अपने कर्मों से बनाने की कोशिश करोगे. Because till the time you will think sin is a behavioral issue, you will try to make yourself righteous by your works. Come on. इसीलिए परमेश्वर की नजर में कई बारी ज्यादा घमंडी वो है जिन्होंने कभी शराब सिगरेट नहीं पी, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है परमेश्वर के सामने. That's why those that have never drank or smoked, they think they are more righteous because they never did that, but they are more proud, arrogant before God.
पाप क्या है? बोलो, पाप एक जन्म की समस्या है। Sin is a birth problem. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। I gave an example. जब मेरा जन्म हुआ मेरे बाल काले हैं, When I was born, my hair was black. मैं कुछ भी कर लूं, No matter what I do, उपवास करूं, प्रार्थना करूं, ये काले ही रहेंगे, I fast or pray, they'll remain the same. क्योंकि मेरे माता पिता से जो डीएनए आया उसमें काले बाल हैं। Because the DNA I got from my parents अब gave me धर्म that ये hair. कहता है कि मैं इनको सुनहरे करा लूं, Now religion tells me I can get them मैं पार्लर golden. में जाके इनको गोल्डन करा सकता हूं, I go to the parlor to make them golden. अपनी एक नीली आई लेंस पहन सकता हूं, I can put on a blue eye lens. मगर असलियत में अंदर क्या है? But in reality- काले बाल हैं, काली आंखें हैं। In reality, I have black hair and black धर्म eye व्हाइट lenses. चोगा पहना देगा हमें। The religion will give us a white robe. हाँ, धर्म कहेगा प्याज और लहसुन मत खा, Religion will say abstain from certain मगर foods. बाहरी उससे आप अंदरूनी स्वभाव को नहीं बदल सकते। But from external things, you cannot change the inner man. आमीन। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है, I'm just giving an example. सो दैट आप समझो। कई बहनें पार्लर में जाके गोल्डन बाल कला रहती हैं, Some sisters go to the parlor and वो get अंग्रेज golden नहीं बन back. जाएंगी। They will not become Westerners. कुछ टाइम बाद काले बाल आने लग जाएंगे वापस। After some time, the black hair will grow out again. व्हाइट कपड़ा पहन लो, Put on white कुछ clothes. भी कर लो, No matter अगर what you do. अंदर पाप का स्वभाव है, थोड़े समय बाद वो स्वभाव बाहर आने लग जाएगा। If sin nature is inside, it will start to come out after some time. सो बाहरी चीजें करने से अंदर का स्वभाव नहीं बदलने वाला। So external things do not change the man that is inside, the nature that is inside. इसीलिए कितने भी पुण्य के काम करा लो, So no matter how many good works you do, कितना भी हलवा खिला लो, no matter how much food you distribute, जो अंदर स्वभाव है वो बदलने वाला नहीं the है। nature that is inside is never going to change like that. इसीलिए हमें एक छुड़ाने वाला चाहिए, एक उद्धार करता चाहिए। This is why we need a deliverer, we need a savior. कौन मुझे इस पाप में देह से, इस मरणहार देह से छुटकारा देगा? पौलुस कहता है। Who can redeem me? Who can deliver me from this sin nature, from this sinful Oh, flesh? then he Paul says it is in Christ Jesus। फिर वो कहता है मसीह यीशु में वो छुटकारा है. अब ध्यान से सुनो, ये- इसीलिए सवाल ये नहीं तुम क्या करते हो, सवाल ये है तुम कहाँ हो। So the question is not what do you do, the question is where are you? What is your location? What is your position? आपका स्थान क्या है? अगर मैं कितने भी पुण्य के काम करूं और मैं आदम से नहीं छुटकारा पा सकता, If despite doing all the good things I cannot be delivered from Adam, अगर ये जन्म का प्रॉब्लम है, अगर ये मेरे जन्म से प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब मुझे एक नया जन्म लेना पड़ेगा। if this is a birth problem, that means I need a new birth. मगर दोबारा जन्म लेना, मैं दोबारा क्या बोलते हैं उसको, पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब दोबारा जन्म लोगे तब भी तो आदम से ही पैदा हो रहे हो, फिर पापी रहोगे। But I'm not talking about another life that you are born as a new. I'm not talking new about life. reincarnation. Yeah, not about reincarnation. Yes. पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका मतलब मेरे पैदा होने के स्रोत को बदलना होगा अगर मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए। That means my source of birth has to change if I want deliverance from this sin nature. और यीशु ने कहा And Jesus said, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो, जब तक तुम नया जन्म ना लो, नए सिरे से ना जन्मो, यानी ये जो जन्म है ये अलग तरीके का नया जन्म है, जब तक तुम अलग तरीके से ना जन्मो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते। and Jesus said, unless you're born again from a different source, he's talking about, you cannot see the kingdom of heaven. Put John 3:3। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको स्वर्ग के राज्य में क्या प्रवेश कराता है, आपके कर्म या आपका जन्म? Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So what gives you the ability to see the kingdom of God or enter it? Is it your good works or your birth? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। Jesus said, I tell you the truth. यीशु को कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सत्य है। He didn't have to say that. He is the मगर वो truth. आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि आप इसको मिस ना करो। But he's telling you something so important that you don't miss it. वो कहता है यदि कोई नए सिरे से, नए स्रोत से, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसका मतलब कितने भी पुण्य कर लो, मगर अगर आपने नया जन्म नहीं पाया तो परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। Jesus said, unless one is born again from a different source, he's saying you cannot enter the kingdom of God. So what will take me to heaven?
स्वर्ग क्या ले जाता है Or मुझे? what takes me to his kingdom? उसके राज्य में मैं कैसे जा सकता हूँ? Come on. How? By birth. जन्म के द्वारा. इसका मतलब That means मुझे नए रीति से पैदा होना जरूरी है. that I have to be born from a new source in a different way. Is it verse 6? I think आप छठवीं उसमें Jesus then said, the flesh gives birth to flesh. The spirit gives birth to spirit. और यीशु यहाँ कहते हैं शरीर को जन्म देता है लेकिन आत्मा को जन्म देता है. ओ हालेलुया. जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन आपने शरीर से जन्म लिया, पहले आदम से जन्म लिया. जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना उस दिन आपने आत्मा से जन्म लिया और परमेश्वर आपका पिता हो गया. The day you were born in flesh was your birthday, but the day you received Jesus as your Lord is the day you were born of God and you had a birth from the Spirit of God. Amen. That's why John 1:12 says, as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, who are not born of flesh, not born of blood, not of the will of man, but those who are born of God. जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, आपने एक आत्मा से नया जन्म लिया, शरीर का नया पुनर्जन्म नहीं, आत्मा का नया जन्म हुआ और अब आपका एक और पिता है जो अनंत से आपका पिता था, वो आप परमेश्वर आपका पिता है. So the day you believed in Jesus, you were born again, not in flesh, you did not reincarnate, but in the spirit you were born again, and now you have a father who was always your father from the beginning. Last Adam यानी Christ मसीह, आखिरी आदम यानी कि मसीह, आदम उसको बनना पड़ा क्योंकि वो देह धर कर आया. he had to become Adam because he put on flesh. ओके. अब केवल दो तरह की प्रजातियां हैं इस पृथ्वी पर. Now, सारे जो धर्म हैं वो पहले आदम के अधीन हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो. जितने धर्म हैं वो सब पहले आदम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पहले आदम को फिक्स करते हैं हम लोग. Now all the religions are in the first category where they are trying to fix the first Adam. जब पाप प्रवेश करा पहले मनुष्य के द्वारा, तब से मानव जाति उस पाप को कोशिश कर रही है उससे छुटकारा पाने की. So hear this. When sin entered Adam, since then mankind has been trying to fix or deal with that sin. Are you ready? तैयार है? The desire to get rid of sin consciousness is the birth of all the religions. पाप की उस मानसिकता, उस पाप के विवेक से छुटकारा पाना कारण है सारे धर्मों के जन्म लेने का. All the religions were born because now man is trying to get rid of this sin consciousness. सारे धर्मों का जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य कोशिश कर रहा है इस पाप के विवेक से, इस दूषित विवेक से आजाद होने की. And no matter what he does, और कुछ भी क्यों ना कर ले इंसान, this sin consciousness does not leave him. ये पाप का विवेक उसे छोड़ता ही नहीं है. And the problem, the sad thing in church today is और आज दुख की बात ये है कलीसिया, that the sin consciousness has been fostered and developed over the years by preaching against sin and not about the son. कि सालों से पाप के इस विवेक को और मजबूती मिली है. पाप के खिलाफ प्रचार कर करके कलीसिया में उस पुत्र के बारे में प्रचार नहीं हुआ, पाप के खिलाफ प्रचार हुआ है. तुम पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो. And the sin consciousness becomes stronger and stronger and stronger. You are a sinner, repent. You are a sinner, repent. You are a... And for years, और जो पाप का विवेक है वो मजबूती पाता चला गया और मजबूत होता चला गया. Man wants to get rid of this sin consciousness. इंसान पीछा छुड़ाना चाहता है इस पाप के विवेक से. मनुष्य को लगता है कि अगर मैं अच्छे कर्म करता रहूंगा, Man thinks if I keep doing good things, और कुछ गलत ना करूं और लंबे समय तक करता रहूंगा, तो मेरी ये sin consciousness मुझे छोड़ के चली जाएगी. man thinks if I keep doing good things for a long time and I don't mess up, then this sin consciousness will leave me. और आपने 40 दिन का उपवास किया, And you fasted for 40 days. आप कह रहे हो वाह प्रभु, You're like, wow, God. और तब आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो And then you're driving in Delhi. और एक बंदा ऐसे कहता है, "ज़ूं," आपके आगे से, And one guy just overtook you. सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह आर्ग्यूमेंट हो गया बीवी से. Woke up in the morning, had an argument with your wife. No matter how much you try to fix, कितना भी कोशिश कर लो ठीक करने you की, cannot fix it. नहीं ठीक कर सकते, Cannot fix it. ठीक नहीं कर सकते. That's why religion is all about your behavior and your outward appearance. इसीलिए धर्म का सारा ध्यान आपके व्यवहार पर है, आप बाहर से कैसे दिखते हो इस बात पर है. Religion cannot do anything to your spirit. धर्म आपकी आत्मा को कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं कर सकता. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? धर्म आपको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. Religion is trying to fix you. यीशु ने कहा इनको फिक्स नहीं करना, Jesus said you cannot fix them. इनको मारना है. You have to kill them.
Because the Bible says, he who had died is delivered from sin. क्योंकि बाइबल कहती है जो मर गया वो पाप से मुक्त हो गया.